please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. नर्वसनेस देखने को मिल रही है साफ तौर पर। देखिए कर्नाटक में किसकी सरकार बनेगी इसको लेकर अभी स्थिति साफ नहीं है। कल तक ये स्थिति साफ होगी और उससे पहले थोड़ी सी तेजी वाली पोजीशंस लोग हल्की कर रहे हैं। मिड कैप्स में ज़्यादा तेज प्रेशर है, 1% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। नज़र रहेगी 10,800 के ऊपर हम जाकर समाप्त होते हैं या इसके नीचे सेकंड हाफ में। देखिए लेकिन एक बढ़ने वाले शेयर के सामने करीब 3 गिरने वाले शेयर हैं। बैंकिंग स्टॉक्स जहाँ पर थोड़ी तेज़ी देखने को मिल रही थी वो देखिए अब दबाव दिखा रहा है। सेंसेक्स और निफ्टी भी ऊपरी स्तरों से थोड़ा सा प्रेशर में आए हैं। सन टीवी जिसके नंबर्स आए और काफ़ी सारी शॉर्ट पोजीशंस पहले ही बनी हुई थी वो देखिए कवर हुई है, तो उसके चलते ये शेयर 11% ऊपर है और सबसे ज़्यादा गिरने में आगे है रिलायंस नेवल। पीसी ज्वेलर्स में भी देखिए सुबह से ही गिरावट देखने को मिल रही है। एफएनओ के बैन से बाहर आते ही देखिए यहाँ पर शॉर्ट पोजीशंस बनती हुई। टाटा ग्लोबल ब्रेवरेजेस ने खराब नतीजे पेश किए हैं तो यहाँ पर 10% की मार। पीटीसी इंडिया फाइनेंशियल्स के कमज़ोर नंबर्स आए तो पीटीसी इंडिया में 6% की गिरावट और पीटीसी इंडिया फाइनेंशियल्स भी दबाव के साथ ही कारोबार करता हुआ। रिलायंस नेवल का असर पूरे एडीएजी पैक पर देखने को मिल रहा है। लेकिन कुछ कंपनी जिन्होंने अच्छे नंबर्स पेश किए हैं, चलिए इसकी बात करते हैं। HOEC के नतीजे बहुत ही शानदार आए। कहाँ से आई इतनी अच्छी ग्रोथ और आगे का आउटकम क्या निकल कर आ रहा है, किस तरह का आउटलुक का कंपनी देख रही है आते हुए, इस पर बात करते हैं। कंपनी के एमडी पी लंगो साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गुड आफ्टरनून लंगो साहब, आप बताइए सबसे पहले कैसी रही है तिमाही आपके लिए? No, it's been a fantastic year, Hemant. We've achieved 3 important milestones in the last financial year. Number 1 is we ramped up the production from Assam field gas. And number 2 is we've got the field development plan approved for the B80 field, which will, when put on production, will bring in about 2,500 barrels of oil net to the company. And thirdly, we had announced the acquisition of Karsang oil and gas field, in which a company called Geo Petrol has got 30% in participating interest. So these 3 major milestones during the year, and we've also commenced the drilling program in PY1 in April 2018. We will complete that by end of June. That should see increased production from PY1 coming from the July quarter. So overall it's been a fantastic year, Hemant. और सर आगे के लिए मार्जिन का क्या आउटलुक आप देना चाहेंगे स्ट्रीट को? So on the margin, our outlook remains about 70 to 75% operating margin we will see in the FY19. Last year it is slightly lower because the volumes were building up. Our operating cost base is set and it will remain so. As we increase the volume, we would be able to achieve a 70 to 75% operating margin during FY19. और गैस फ्रंट पर वॉल्यूम्स कैसे रहे इस तिमाही में? आगे चलकर वहां पर क्या गाइडेंस है? Yeah, Hemant, as you know that in August 2017 we started the gas sales from Dirok field. Dirok field has got 3 partners, HOEC, Oil India and IOC. We started with 10 million cubic feet of gas per day, and currently we are doing about 25 million cubic feet of gas per day, and we hope by end of this quarter we will be able to take the production to 36 million cubic feet of gas per day, which means all the 6 wells have been drilled now, they have been hooked up, and the gas is flowing through to the customers to the newly built facility, which got commissioned in March. So the volume ramp up from Assam is on track. So 36 million cubic feet is equivalent to 1 million cubic meter of gas, which is 15% of the total gas production from Assam. We would also be producing condensate, for which the pipeline has been laid, and condensate supply also commenced to IOC. So on Assam, we have delivered on every promise that we made to the market, and with the gas prices looking better now, last year it was about $3 per MMBTU. From April 1st onwards, the price is about $3.3 per MMBTU, as well as the oil price is looking good, so we should be able to exceed our earlier guidance given to the market. तो जो आपने पिछली गाइडेंस दी थी बाजार को वो थी 150 करोड़ रुपए का रेवेन्यू का FY19 के लिए, तो कितने
आंकड़ा और देखने को मिल सकता है? वो आप कोई नई रिवाइज गाइडेंस स्ट्रीट से शेयर करना चाहेंगे? No, at this stage we would just, I would only reiterate the earlier guidance given and give a 100% confidence on our ability to achieve those guidance. Baki, how much it goes up further is really depends on how the oil prices move. So I would stick to the earlier guidance given and would wish to assure that will be fully met because the projects have been completed or almost completed. क्योंकि कई लोग आपकी कंपनी के बारे में जानते हैं, लेकिन ये जो शो है नो योर कंपनी, जैसा कि इसका नाम है, कई लोग इस कंपनी को और समझना चाहेंगे। मैं समझता हूँ करीब 5 ऑनशोर ब्लॉक्स हैं, 4 ऑफशोर ब्लॉक्स हैं। ये बताइए आगे चलकर कंपनी और किस तरह दिशा में चल रही है? हमने देखा है सरकार की जो नीतियां हैं, हेल्प जो नई नीति है उसको लेकर आपने भी कुछ ब्लॉक्स के लिए पहले बोलियां लगाई थी। क्या प्लान्स हैं कंपनी के आगे चलकर, ये बताइए। अच्छा, what is unique about HOEC is that the entire portfolio of assets that we have, now it is about 10 blocks, all of them have discovered resources, which is very unique. We don't have any exposure to exploration, but in the blocks that we hold, there is always an upside potential. That is number one. Number two is that we are heavily focused and exposed in Northeast region, where as a strategy, I've been saying to the market, the vision was to build a leading oil and gas company in India with a dominant presence in Northeast, because Northeast is known for its prolific oil and gas resources. In all the opportunities that come in the Northeast, we have been grabbing them. We participated in the Discover Small Field round, added 2 blocks, one in B80, the other is in Kerem. We participated in the recently launched open acreage licensing policy help round, where we have bid for a block in Northeast very adjacent to the Dirok field, and the results will be known in June. We also joined hands with Oil India and ONGC to participated in a joint bidding of 2 blocks. I'm very proud that we are the only private company to join hands with the public sector units, and we have participated in that. And more importantly, today the external environment, as you rightly pointed out, gives an opportunity to upgrade your portfolio on a continuous basis, because this open acreage licensing policy and the Discover Small Field Round 2 that's coming up, anytime a company can access the National Depository database and carve out a block area of interest and trigger a bid round, which will happen every 6 months. So the opportunity to build and constantly upgrade the portfolio is one very interesting thing. The second is obviously the oil prices are looking better. The industry globally also is quite feeling comfortable and upbeat about where things are headed. Obviously one cannot be absolutely sure about the specific number, but directionally it's a tailwind time for the oil and gas industry, and more so in India. So what we want to do is to really focus on our existing portfolio, which has got 10 assets both in offshore and in onshore of discovered resources. So we've got a lined up pipeline of projects which we will be executing. I had earlier guided the market about PY1, our focus to revive the PY production. So this year focus is really to bring up the production from PY1. PY1, as you know, currently is producing about 2 million cubic feet of gas per day. We've already mobilized a rig and commenced the drilling in that block. We are going to do a 2-well drilling campaign, which will be completed by end of June. And we expect the production to go almost 5 times from PY1, from 2 million cubic feet to 10 million cubic feet. We already have a gas sales agreement in place. We've got all the infrastructure to deliver the gas. And the gas price also is about $3.7 per MMBTU in Kaveri offshore. So the year ahead is really looking very good, and also gives us the confidence to build a larger organization. We are focused on building the organization capacity. We are one of the limited private sector players who can operate both in onshore and offshore comfortably.
और अब बात करते हैं इनोवेटर्स फसाड सिस्टम्स की। जी हाँ, बीएसई इमर्ज पर ये आईपीओ आ रहा है, आज से खुला है, 16 मई तक ये खुला रहेगा। क्या है कंपनी की योजनाएं, इस सब पर बात करने के लिए कंपनी के एमडी राधेश्याम शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनके बेटे रोहित शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का ही स्वागत है। रोहित, शुरुआत आपसे, यंग जनरेशन से बताइए, आप कंपनी को मैनेज कर रहे हैं, सबसे पहले इस इशू के बारे में बताएं, कितना बड़ा पैसा आप जुटाना चाहते हैं, क्या प्राइस बैंड है, इसके बारे में हमें सबसे पहले डिटेल्स दीजिए। We are coming up with an IPO for 40 crores. Majorly, this is for the upgradement of our facility and working capital for the upcoming projects. The demand of the market is really high. इस मार्केट का क्लेम किया जाता है कि 10,000 करोड़ से भी ज़्यादा है, बट ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स बहुत कम है। तो पोटेंशियल देखते हुए आगे का, आई थिंक दिस इज द राइट अपॉर्चुनिटी, राइट टाइम फॉर अस टू इन्वेस्ट, टू गो फॉर एन आईपीओ। ओके, तो इस कंपनी के बारे में थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। आप बताइए, ये कंपनी आपने कब सोचा, इस कंपनी के बारे में किस तरह से ये कंपनी ने आगे प्रोग्रेस किया, क्या क्या करती है, किन किन लाइन ऑफ बिजनेस में है कंपनी? हम लोग बिल्डिंग एनवलप सॉल्यूशंस देते हैं, बिल्डिंग फसाड सॉल्यूशंस के में हैं। बिल्डिंग 99 में हमने ये कंपनी स्टार्ट की थी। उस दौरान बहुत कम फसाड कंपनीज थी यहाँ पे, जो करने के लिए फसाड में इंडिया कितना मार्केट मैच्योर भी नहीं था, डिमांड काफ़ी थी। उसके लिए हम लोगों ने ये स्टार्ट किया, और एयरपोर्ट से हमारे को मेजरली बॉम्बे एयरपोर्ट से रिनोवेशन हुआ, तब पहला चांस मिला। 8 करोड़ का एक सिंगल प्रोजेक्ट मिला। उसके बाद से रेगुलर हम लोग एयरपोर्ट्स के प्रोजेक्ट्स करते रहे, 13 एयरपोर्ट्स हमने कर चुके हैं। तो फसाड सिस्टम्स यानी अगर सरल भाषा में बताऊं कि जो आप बड़ी बिल्डिंग्स में बड़े कांच लगे हुए देखते हैं, बहुत ही सुंदर से आप देखते हैं बिल्डिंग का सीमलेस कांच लगे हुए, उसको ही फसाड्स कहते हैं, या इससे ज़्यादा भी डेफिनेशन है कुछ? That's all facade. We provide a one-stop solution to a facade. तो आप कोई भी बिल्डिंग देखते हैं जिसको कपड़े पहनाने का काम करते हैं, यू कैन देसी भाषा में हम कहें तो, वी प्रोवाइड वन स्टॉप फसाड सॉल्यूशन। सो बी इट एनी मटेरियल इन द वर्ल्ड। बिल्डर बिल्डिंग बनाकर खड़ा कर देता है, उसके बाद आपका काम शुरू होता है, उसका कहते हैं ब्यूटिफिकेशन करना। तो किस तरह के फसाड्स आप बनाते हैं, अगर कुछ हमें डिटेल्स बता सकें? सो बी इट एनी फसाड, सो एट द मोमेंट वी आर डूइंग द लोधा वर्ल्ड व्यू टावर्स, दैट्स अ 300 मीटर हाई बिल्डिंग and having 89 stories. So that complete facade has different elements that needs to be implicated, and it has been tested at one of the highest wind pressures. आप देखेंगे 7.1 kPa पे हमने टेस्ट किया है one of the buildings. That is the highest ever tested in India. So we are doing unique buildings. आप skyline देखिए, इंडिया की skyline तो अभी बनी नहीं है, शुरुआत हुई है। बॉम्बे की skyline देखिए, तो we are aiming for the skylines, and if you see the Bombay airport is done by us. If you see Taj GVK, the facade has been done by us. So these are just a few projects that which I can talk about, and there's a big profile that goes on for the same. तो भारत में तो बहुत सारे और एयरपोर्ट्स भी बनने वाले हैं, तो बहुत सारे और ऑर्डर्स की भी एक्सपेक्टेशंस की जाए। आप बता रहे हैं जिस तरह से कि सबसे पहले आपके हाथ एयरपोर्ट का प्रोजेक्ट बना था, और काफ़ी सारे एयरपोर्ट्स में देख रहा था आपकी लिस्ट में शामिल है। या हमने 13 एयरपोर्ट्स किए हैं, और अभी भी गुवाहाटी, चेन्नई, लखनऊ एयरपोर्ट्स बड़े लेवल पे आ रहे हैं। इवन बॉम्बे एयरपोर्ट सेकंड पार्ट जो आ रहा है वो नवी मुंबई वाला, बेंगलोर एयरपोर्ट का रिनोवेशन हो रहा है। तो सर, किस तरह के मार्जिन हैं, अगर ये आप हमें समझाएं, कितने मार्जिन आपकी कंपनी एंजॉय करती है इस तरह कामकाज में? अभी हमने जो दिसंबर में किया 17 में, वो करीब 14% का बीटा किया है। और अभी जो सेगमेंट आया जिसमें बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, जो 100 करोड़ प्लस के सिंगल प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, जैसे लोधा का हमारा 100 प्लस करोड़ सिंगल प्रोजेक्ट्स है, इसमें कंपनी काम करने वाले लोग हैं ही नहीं, एमएनसी जा रही हैं। कुछ इंडिया में 3 से 4 कंपनी हैं जो इतनी कैपेबल हैं, कर सकती हैं। उनमें मार्जिन लेवल ज़्यादा है, 17-18% का बीटा लेवल है उसमें। और पूरे साल, पिछले साल कंपनी ने कितना सेल्स ग्रोथ दिखाई है? सेल्स ग्रोथ दिसंबर तक हमने 125 करोड़ दिखाया है। और क्या उम्मीद है इस साल के लिए? इस साल 18 में हम लोगों ने 150 प्लस क्लोज किया है। और किस तरह का रेवेन्यू ब्रेकअप है, अगर वो आप हमसे शेयर करें, कौन कौन से डिवीजन से किस तरह का रेवेन्यू आता है आपकी कंपनी में? डिवीजन में मेनली यूनिटाइज फसाड जो आता है उसका मेजर पार्ट रहता है हमारा। इसमें प्री फैब्रिकेटेड फैक्ट्री से होकर के जाता है, इंस्टॉलेशन रहता है। साइट की एक्टिविटी हमारी
मिनिमाइज हो जाती है इसके अंदर। ओके, तो सब कुछ बनाने के बाद, प्लान करने के बाद साइट पे जाकर इंस्टॉल करती है सिर्फ इंस्टॉलेशन के। ओके, और आगे की योजनाएं कंपनी के बारे में बताइए। जैसा कि आपने कहा, आप ये जो पैसा है आप जुटाएंगे, उसके बाद आप उस पैसे का इस्तेमाल किस तरह से करने वाले हैं? अभी एक्चुअली हमारी जो ज़रूरत है इसमें, अभी हमारा 17 में टर्नओवर हमारा 100 करोड़ प्लस था। ओके, अभी हमारे सिंगल प्रोजेक्ट 100 प्लस के हो गए हैं, जो ऑर्डर मिले हैं और आगे मिलने वाले हैं जिस तरह से। तो हमारे को अपग्रेड करना जरूरी है, ऑटोमेशन में जाना जरूरी है। अभी जो हमारा प्लांट है उस लेवल का नहीं है, तो मेजर हमें उसमें करना पड़ेगा और वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट रहेगी। ओके, इस आईपीओ से कंपनी के प्रमोटर्स की हिस्सेदारी अभी कितनी है और आगे कितनी हो जाएगी? अभी हमारी 90% है, जो 68% रह जाएगी इसके बाद में। ओके, और मैं देख रहा था BSE एमर्ज पर इसकी लिस्टिंग होगी, काफ़ी एंकर इन्वेस्टर्स ने भी पार्टिसिपेट किया है। किस तरह के नाम थे वो, कितना पैसा आपने एंकर इन्वेस्टर्स से जुटाया? एंकर में FII हैं जो 11.5 करोड़ रुपए आए हैं एंकर्स के साथ में, और उससे पहले मिस्टर विजय केडिया भी इन्वेस्ट कर चुके हैं 7.5 करोड़। पेंटोमेथ ने 2.5 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया है। पेंटोमेथ ने 2.5 करोड़ रुपए, करीब 6% के आसपास विजय केडिया जी जो HNI इन्वेस्टर हैं, जिनका नाम बाजार काफ़ी रिस्पेक्ट से पढ़ता है, उन्होंने काफ़ी अच्छी कंपनीज में इन्वेस्ट किया है, तो उनका नाम भी यहाँ पर शामिल है। तो वहाँ से भी पैसा आता हुआ दिखा है। ये बताइए, मैं देख रहा हूँ पिछले कुछ दिनों में जो रियल एस्टेट कंपनियां हैं उनकी सेहत सुधर रही है। लगता है आपको कि आगे चलकर ऑर्डर बुक पोजीशन काफ़ी अच्छी रह सकती है आपकी कंपनी की? इस समय आपकी ऑर्डर बुक पोजीशन क्या है, ये बताइए। इस समय हमारी ऑर्डर बुक 300 करोड़ का ऑर्डर बुक है हमारा। ओके, और किस स्पीड से ये ग्रो कर सकती है? इसमें ऑर्डर बुक हमारे लिए चैलेंज नहीं रहता है। ओके, हमें हमारी कैपेसिटी चैलेंज रहता है। ऑर्डर बुक में यदि हम चाहें तो अभी और 200 करोड़ के बुक कर सकते हैं। Okay. हमारी कैपेसिटी बढ़ाने के बाद ही करेंगे हम लोग। ऑल राइट, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राधेश्याम शर्मा जी, रोहित शर्मा जी, आप दोनों का समय निकालने के लिए और आज इस चर्चा में शामिल होने के लिए। गुड लक आप दोनों को इस IPO के लिए। थैंक यू। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, आप कहीं मत जाइए, बने रहिए CNBC आवाज़।